ادارہ جاتی سرطان PIA کی 40 سالہ ناکامی کا فرانزک پوسٹ مارٹم اقبال لطیف کی جانب سے ایک فیکٹ چیکڈ فردی جرم ایپسٹمک سٹینڈرڈ ہر دعوی تصدیق شدہ ہر عدد ماخذ کے ساتھ ہر نتیجہ دلیل سے ثابت تعارف PIA پرائیویٹائزیشن 101 شکوک رکھنے والوں کے لیے اقبال لطیف کا میگنس آپس یہ PIA پرائیویٹائزیشن 101 ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو نعرے گروہی وفاداریاں اور فلیگ کیریئر کی جذباتی تقدیس کے بغیر یہ بحث سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان شہریوں کے لیے لکھا گیا ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ انہیں جذباتی بلیک میل کیا جا رہا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ اعداد، ادارہ جاتی منطق اور گورننس کی حقیقت صاف کھلی اور بے رحم روشنی میں رکھی جائے۔ نجکاری پرائیویٹائزیشن نہ کوئی دعا ہے نہ کوئی گناہ۔ یہ ایک پالیسی ٹول ہے، وہ ٹول جو تب استعمال ہوتا ہے جب ریاست نے برسوں کی کارکردگی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہو کہ وہ کسی تجارتی ادارے کو چلانے کے بجائے اسے سیاسی سرپرستی پیٹرونیج کی مشین میں تبدیل کر دیتی ہے۔ درست سوال یہ نہیں کیا نجکاری اچھی ہے، درست سوال یہ ہے جب دہائیوں کی قابل پیمائش ناکامی سامنے ہو تو ٹیکس دہندہ اور ملک کے لیے کم سے کم نقصان والا راستہ کیا ہے۔ اسی لیے یہ دستاویز کسی موٹیویشنل تقریر کی طرح نہیں بلکہ ایک فرانزک آٹوپسی کی طرح ترتیب دی گئی ہے۔ یہ 3 کام کرتی ہے۔ پہلا، یہ امپیریکل ناکامی کا ریکارڈ قائم کرتی ہے، ریگولیٹری جلاوطنی، گورننس کا انہدام، اسٹافنگ کی بیماری اور طویل مدت تک ٹیکس دہندگان کا خون بہنا، تاکہ بحث یہ ڈرامہ کرنا چھوڑ دے کہ PIA عارضی مسائل والی ایک نارمل ایئر لائن ہے۔ دوسرا، یہ اس ڈیل کی منطق واضح کرتی ہے جسے ناقدین دانستہ غلط سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ عوامی مفاد حکومت کی کیش وصولی نہیں، عوامی مفاد یہ ہے کہ ایک فنکشنل ایئر لائن بننے کے امکانات زیادہ ہوں اور سالانہ سرکاری خونریزی بند ہو۔ تیسرا، یہ ایک بڑی ادارہ جاتی بات کرتی ہے جسے پاکستانی فطری طور پر سمجھتے ہیں مگر کھل کر کم کہتے ہیں۔ پاکستان دنیا درجے کی برتری تب پیدا کرتا ہے جب ادارے میرٹ پر ہوں اور نتائج سزا جزا سے جڑے ہوں، اور پاکستان تباہی تب پیدا کرتا ہے جب ادارے سرپرستی پر ہوں اور ناکامی کی کوئی قیمت نہ ہو۔ نوٹ برائے دائرۂ کار اہم، ایک بار پڑھیں پھر جھوٹ بند کریں۔ بیرون ملک اثاثے ہوٹل اسکرائب پیرس اور ہوٹل روزویلٹ نیو یارک یہاں اسی استخراجی ریاستی اثاثہ کلچر کے ثبوت کے طور پر زیر بحث لائے گئے ہیں اور دہائیوں کی غفلت و قدر کشی کی چھوٹی مگر واضح مثالوں کے طور پر۔ ان کے بارے میں یہ دعوی نہیں کیا گیا کہ وہ PIA ایئر لائن کی اس سیل نجکاری میں شامل ہیں۔ انہیں دلیل میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ایک ہی پیٹرن دکھاتے ہیں، ریاستی نگرانی بطور ڈیزائن زوال۔ اگر کوئی ان ہوٹلز کو ہتھیار بنا کر یہ کہے کہ یہ بھی اسی ٹرانزیکشن میں بیچے گئے تو وہ کنفیوز نہیں، وہ شور گھڑ رہا ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے، پرچم فلیگ آپریٹنگ ماڈل نہیں ہوتا۔ پرچم آپ تب اڑاتے ہیں جب آپ معیار پورا کر سکیں۔ جب آپ معیار پورا نہ کر سکیں تو پرچم ایک پراپ بن جاتا ہے جو ایک سرپرستی نیٹ ورک کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا بل عوام ادا کرتے ہیں۔ ایگزیکٹو سمری: فیصلہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کوئی ایسی ایئر لائن نہیں جو اتفاقاً خسارے میں چلی جائے۔ یہ ایک منظم دولت تباہ کرنے والی مشین ہے جس نے 4 دہائیوں میں ٹیکس دہندگان کے تقریباً 600 ارب روپے کھا لیے، جبکہ سروس مسلسل بدتر ہوتی گئی، حتیٰ کہ بین الاقوامی ریگولیٹری جلاوطنی تک بات پہنچی۔ یہ رائے نہیں، یہ قابل پیمائش ادارہ جاتی ناکامی ہے۔ PIA کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ 40 برس میں پہلی بار ایک عقلی پالیسی انتخاب ہے۔ قومی اثاثہ بیچ دیا کا رونا رونے والے یا تو معاشی طور پر ان پڑھ ہیں یا جان بوجھ کر بددیانت، کیونکہ جو چیز باقی ہے وہ اثاثہ نہیں، یہ ذمہ داریوں لائبلٹیز کا ڈھانچہ ہے جس پر صرف پرچم پینٹ ہے۔ یہ دستاویز فرانزک ثبوت فراہم کرتی ہے۔ حصہ اول، امپیریکل بنیاد۔ حقیقت ایک، PIA مغربی فضائی حدود میں پابندی کا شکار ہے۔ حقیقت، یورپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی EASA نے PIA پر 1 جولائی 2020 سے پابندی لگائی۔ UK سول ایوییشن اتھارٹی نے 30 جون 2020 کو آپریٹنگ پرمٹ منسوخ کیا۔ US FAA نے پاکستان کو کیٹیگری 2 جنوری 2020 میں ڈاؤن گریڈ کیا، جس سے توسیع اختیارات محدود ہوئے۔ پابندی کی حیثیت دسمبر 2024 تک برقرار۔ سورسز: ESA سیفٹی انفارمیشن بلیٹن 2020 دیریوارٹ، UK CA فارن کیریئر پرمٹ ریووکیشن نوٹس 30 جون 2020۔
FAA इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम इसका मतलब पाकिस्तान की फ्लीग कैरियर यूरोप या अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद में पाकिस्तान का परचम लेकर दाखिल नहीं हो सकती। ये कोई ब्यूरोक्रेटिक टेक्निकलिटी नहीं, ये बीन अल-अक़वामी रेगुलेटरी कम्युनिटी का सिस्टम की दायरा जाती नाकामी पर फैसला है, खुसूसन रेगुलेटरी कीपचर, सेफ्टी कल्चर का इन्हिदाम, इम्तिहानी लाइसेंसिंग सिस्टम की करप्शन, निगरानी की नाकाफ़ी सलाहियत। दुनिया भर में तकरीबन 12 एयरलाइंस ऐसी हैं जिन पर ईयू में ऑपरेशनल पाबंदी है। पीआईए की कंपनी उन कैरियर्स के साथ खड़ी है जो जंगी ख़तों और नाकाम रियासतों से जड़ी समझी जाती हैं। खुद मुख्तारी का तजाद, किसी मुल्क की फ्लीग कैरियर का उसी मुल्क का परचम लेकर उड़ने से रोका जाना कौमी फ़ख्र नहीं, ये तहजीबी नाहली का सर्टिफिकेट है। हकीकत 2, पीआईए के 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली मशकूक निकले। स्कैंडल 24 जून 2020 को वज़ीर हुआ बाजी ग़ुलाम सुरूर ख़ान ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ऐलान किया, पाकिस्तान में 860 फ़याल पायलट्स में से 262 के लाइसेंस मशकूक डूबियस हैं, यानी पायलट वर्क फोर्स का 30.5%। तबाही की टाइमलाइन 22 मई 2020। पीआईए फ़्लाइट 8303 कराची में क्रैश, 97 अमवात। 24 जून 2020 हुकूमत ने 269 मशकूक जाली इसनाद का एतराफ़ किया। जून जुलाई 2020 ईयू और यूके ने फौरी पाबंदियाँ आयद की। सोर्सेज पाकिस्तान नेशनल असेंबली प्रोसीडिंग्स 24 जून 2020। एविएशन डिवीज़न प्रिलिमिनरी क्रैश रिपोर्ट पीआईए फ़्लाइट 8303। रॉयटर्स, बीबीसी, अल जज़ीरा। ये क्या ज़ाहिर करता है? ये चंद ख़राब सैब नहीं, ये सिस्टमिक उदारा जाती सोड़न गैंग्रीनर है। 262 अफराद का जाली मशकूक लाइसेंस हासिल करना उसका मतलब है। इम्तहानी निज़ाम करपट था, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ कब्ज़े में थीं, सेफ्टी प्रोटोकॉल अफसाना थे, उदारा जाती याददाश्त मिटा दी गई इस दर्जे की धोखा दही के लिए लाजमन। इम्तिहान लेने वालों की रश्वत, रिकॉर्ड्स की जालसाजी, मैनेजमेंट की चश्मपोशी, रेगुलेटर्स की पुस्पाई, नाकामी ज़रूरी थी। एक जाली लाइसेंस करप्शन है, 262 जाली लाइसेंस रियासती नाकामी है। हकीकत 3, टैक्स दहंदगान के तकरीबन 600 अरब रुपए ज़ाया खूनरेज़ी। पीआईए ने 4 दहाइयों में टैक्स दहंदगान के $620 अरब इस्तेमाल ज़ाया किए, दर्ज झेल रास्तों से। कंपोनेंट ब्रेकडाउन वेरीफाइड। 1, 2016 का कर्ज मुंतकली $200 अरब हुकूमत ने पीआईए का कर्ज पीआईए होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किया। टैक्स दहंदा वही, सिर्फ लेजर बदला। सोर्स पाकिस्तान ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स 2016, 2017। 2, ऑपरेटिंग खसारे 2013-2023 $350 अरब सालाना खसारा $30-50 अरब, दहाई भर का मजमुआ $350 अरब। सोर्स पीआईए एनुअल रिपोर्ट्स 2013-2029 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल ऑपरेशंस 3 सॉवरेन गारंटीज एंड हिडन ऑब्लिगेशंस $150+ अरब, सरकारी ज़मानत शुद्धा कर्ज़े, लीज़ गारंटीज़, पेंशन वाजिबात, कानूनी ज़िम्मेदारियाँ। सोर्स प्राइवेटाइजेशन कमीशन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स टोटल वेरीफाइड रेंज $662 अरब, 600 अरब की असल मानवियत। ये समझने के लिए कि ये चोरी ज़या कितना बड़ा है, पाकिस्तान के बजट से तकाबुल करें। तालीम $1000 बिलियन ईयर, पीआईए के नुकसानात सालाना तालीमी बजट का 60%। सेहत $500 बिलियन ईयर, पीआईए के नुकसानात का सालाना सेहत बजट का 40%। बलूचिस्तान जीडीपी $200 बिलियन ईयर, पीआईए के नुकसानात पूरे सूबे की जीडीपी के 2+ साल बेन नस्ली चोरी, पीआईए में जलाया गया हर रुपया चराया गया। उस बच्चे से जिसे तालीम न मिली, उस मरीज़ से जिसे इलाज न मिला, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कभी बना ही नहीं, उस माशी मौका से जो कभी पैदा ही ना हुआ। ये कोई एयरलाइन जिसने नुकसान किया नहीं, ये अवामी दौलत को सियासी सरपरस्ती में बदलने का मेकानिज़्म है। हकीकत 4, 324 स्टाफी तैयारा, जबकि आलमी मयार 120 के आसपास सरपरस्ती पेट्रोनेज को काबिल पैमाइश बना दें। पीआईए 2023 एम्प्लॉज़ 11 नंबर 25, एयरक्राफ्ट 34, स्टाफ एयरक्राफ्ट 320। पीआईए 2019 एम्प्लॉज़ 14500, एयरक्राफ्ट 38, स्टाफ एयरक्राफ्ट 488। सिंगापुर Airlines 27,147, 184. Qatar Airways 46,250, 1-84. Turkish Airlines 73,400, 182. Ryanair 19,555, 34. Efficient range
150 sources, PIA Annual Report 2023, Airline Intelligence and Research Database, CAPA Center for Aviation Corruption की रियाजी, PIA Actual 334 x 11,725 मुलाजमीन, Annual Payroll per hours 27.5 Arab Efficient, Benchmark 120 x 34 मुलाजमीन, Annual Payroll ज़्यादा तनख्वाहों पर भी, Hours 14.3 Arab Annual, Waste Hours 13.2 Arab, Twice Year Waste Hours 200 अरब 645 इदाफ़ी मुलाजमीन क्या हैं? ये नौकरियां नहीं, ये सियासी IOUs हैं जो मुलाजमतों में बदल दिए गए। पार्टी वर्कर्स को अहदे वज़रा के रिश्तेदार, कबायली, कोटा, नस्ली तवाज़ुन, हर सियासतदान के भतीजे रिश्तेदार की एडजस्टमेंट। ये वही मेकानिज़म है जिससे सियासी ताकत सरकारी रोज़गार के ज़रिए वोटर वफादारी ख़रीदती है। छिपा हुआ नुकसान, ये आरज़ू 264 अरब का पे रोल ज़िया मुसाफिरों से चराया जाता है। महंगे टिकट, बदतर सरूस, आवारा स्टाफिंग से कोआर्डिनेशन फेल, कम रोड्स, पुराना कम महफूज बीड़ा, मेंटेनेंस की ताख़ीर। हकीकत 5 कैम्ब्रियन पेट्रोल, एक अदारा जाती सबूत, पाकिस्तान आर्मी ने 47 ममालिक के मुकाबले में गोल्ड जीता। अचीवमेंट एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 ब्रीकॉन बीकन्स वेल्स UK, पाकिस्तानी टीम गोल्ड मेडल। मुकाबला 47 बीन अल-अक़वामी टीमें। दौरानिया 8 दिन मुसलसल ऑपरेशन एंड्योरेंस टैक्टिक्स रेजिलियंस। सोर्सेज UK मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ISPR बीन अल-अक़वामी मिलिट्री रिपोर्ट्स। ये वाहद हकीकत रियासती PIA के हर दिफा को क्यों तोड़ती है, ये इस पूरी तहलील का सबसे अहम एम्पिरिकल पॉइंट है। इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन खुलासा पाकिस्तान आर्मी कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 गोल्ड 47 में फर्स्ट, पाकिस्तान एयर फोर्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 7th ग्लोबली, पाकिस्तान नेवी रीजनल रेडीनेस हाई परफॉर्मेंस। पाए EU US सेफ्टी बैंड प्लस 262 फेक dubious licenses, होटल स्क्राइब PIA पेरिस मार्केट डिक्लाइनिंग नेगलेक्टेड नाकाबिल फ़रार सवाल। ये वही पाकिस्तानी हैं, वही जीन पूल, वही कल्चर, वही तालीमी माशरा, वही टैलेंट पूल। फिर फ़ौजी इदारों में बढ़तरी क्यों और सोल रियासती इदारों में तबाही क्यों? जवाब ईरान उदारा जाती बढ़तरी के 4 मुतग़यरात। सिलेक्शन मिलिट्री, मेरिट, टेस्टिंग, सियासी तैनाती नहीं। SOEs PEA सियासी सरपरस्ती, कनेक्शन हायरिंग, अकाउंटेबिलिटी। मिलिट्री नाकामी, शीर्ष कैरियर मौत, कोर्ट मार्शल। SOEs नाकामी इन गोल्डन हैंड शेक, दूसरी SOE में ट्रांसफ़र। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिलिट्री ऑपरेशनल खुदमख्तारी। SOEs हर फैसला सियासी, हर हायर सरपरस्ती। परफॉर्मेंस मेट्रिक्स मिलिट्री वाज़ेह विन लूज़। SOEs नुकसान सोशलाइज्ड, नाकामी पर कोई सज़ा नहीं। तहज़ीबी तशख़ीस कैम्ब्रियन पेट्रोल गोल्ड इस बात का एम्पिरिकल सबूत है कि पाकिस्तानी इंसानी सरमाया दर तंजीम के साथ वर्ल्ड क्लास है। नताइज का फ़ैसला कल्चर नहीं, इदारा जाती आर्किटेक्चर करता है। मेरिट कामयाबी पैदा करता है, सरपरस्ती नाकामी पैदा करती है। यह सियासी मुदाखलत उदारा जाती जहर है। अगर पाकिस्तानी 47 मुल्कों के मुकाबले में गोल्ड जीत सकते हैं तो पाकिस्तानी वर्ल्ड क्लास एयरलाइन भी चला सकते हैं, अगर उदारा जाती ढांचा एक्सेलेंस को सपोर्ट करे, एक्सट्रैक्शन को नहीं। हिस्सा दूम नजकारी डील का ढांचा हकीकत 6 Rs 1 to 35 BN की बोली और Rs 1 to 25 BN लाजमी। री इन्वेस्टमेंट डील टर्म्स वेरीफाइड। विनिंग बिडर ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम। हुकूमत को अपफ्रंट Rs 10 अरब री इन्वेस्टमेंट। रिक्वायरमेंट 92.5% Rs 25 BN। फ़रोख्त 60% कंट्रोलिंग स्टेक। ट्रांजैक्शन डेट 21 October 2023। Sources Privatization Commission official announcement, Ernst and Young transaction documents, Cabinet Committee approvals, Dawn, Express Tribune, Reuters, Bloomberg confirmations, Capital Commitment Cascade, Tier 1, hard obligations, reinvestment R125 BN, additional growth capital, 5 years, R80 BN, known liabilities, R33 BN, subtotal, R238 BN, Tier 2, modeled estimates, footnote liabilities, R3540 BN, workforce restructuring, R2025 BN. Fleet modernization, Rs 4060 BN, working capital burn, Rs 30 50 BN, subtotal, Rs 125 175 BN, total buyer exposure, Rs 3.13 BN, 5 years, खरीदार अमली तौर पर 2.73 x तक कैपिटल कमिट कर रहा है। अना सिस्ता बीचा कहने वाले माशी जहालत जाहिर करते हैं। एतराज़ हुकूमत को तो सिर्फ Rs 10 बीमैन कैश मिला, सिस्ता बीच दिया। ये गलत क्यों है? 2 मंजरनामे देखें। सिनारियो A ज़्यादा कैश हुकूमत को,
Bid Rs 200 BN. Government RM 100 BN 50%. PIA reinvestment RM 100 BN. Result हुकूमत के पास खर्च करने को कैश अक्सर सियासी. PIA के पास कम सरमाया सिनारियो B ऑसलर ढांचा. Bid Rs 135 BN. Government Rs 100 BN. PIA reinvestment Rs 125 BN. Result हुकूमत के पास कम कैश ज़ाया करने को PIA के पास ज़्यादा सरमाया टर्न अराउंड के लिए अहम सवाल. अवामी मफाद किस में है? जवाब अवाम को हुकूमत की कैश वंडफाल नहीं चाहिए. अवाम को फंक्शनल एयरलाइन चाहिए. 92.5% री इन्वेस्टमेंट. शर्त क्यों बेहतरीन डिज़ाइन है. यून ख़रीदार को नताइज से पहले सरमाया लगाना पड़ता है. 2 गलती की गुंजाइश कम ठीक न किया तो 400 BN प्लस डूबता है. 3 इंसेंटिव्स सीधे ख़रीदार की कामयाबी शियावामी फ़ायदा. 4 एसेट स्ट्रिपिंग मुश्किल पेशा ऑपरेशन में लाख. जो लोग हुकूमत के केश को एयरलाइन की फंक्शनलिटी पर तरजीह देते हैं वो इसी जहनीत का इजहार कर रहे हैं जिसने PIA तबाह की. गवर्नमेंट रेवेन्यू इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस ये बीमारी है. डील का ढांचा इलाज है. हिस्सा सूम होटल केस स्टडीज़. बड़े जवाल की छोटी तस्वीरें हकीकत. 7 होटल स्क्राइब परिस. गफलत बतौर सबूत ओनरशिप वेरीफाइड. होटल स्क्राइब एक रू स्क्राइब 7S5009 पेरिस. Owned by PIA Investments Limited PIAL. Purchased 1980s. Status operational मगर underperforming. Metrics TripAdvisor 3.55. 1089 reviews. 4 star औसत से 18% कम. Google 3.85. Location Opera District. Paris sources PAL records. Public review platforms. Paris market analysis. हकीकत क्या ये वाकई पेरिस का सबसे बदतरीन होटल है? नहीं, पेरिस में AR 800 होटल्स हैं, कुछ और भी बदतर होंगे. मगर असल बात यह है इस लोकेशन, इस पेडिग्री और इस मिल्कियती शनाख्त के साथ ये गफलत तहजीबी शर्मिंदगी है. ये प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव मयार तक लाने के लिए 500 मैथर्स की रेनोवेशन मांगती है. 40 साल तक PIA के मुकर्रर करदा मैनेजर्स ने पूछा PIA से कितनी मैनेजमेंट फ़ी निकलवाई जा सकती है. कॉन्ट्रैक्ट्स पर कमीशन कितना बनेगा. सियासी सरपरस्त बदलने से पहले कितना निकाल लूँ. उन्होंने ये नहीं पूछा. 4 सीजन्स से कैसे मुकाबला करें. स्क्राइब को डेस्टिनेशन प्रॉपर्टी कैसे बनाएं. तवील मुद्दत में वैल्यू कैसे बिल्ड करें. पैटर्न एक्सट्रैक्शन वैल्यू क्रिएशन नहीं. यही PIA की कहानी है. हकीकत 8 होटल रूजवेल्ट NYC. लैंडमार्क से रेफ्यूजी हाउसिंग तक ओनरशिप वेरीफाइड. होटल रूजवेल्ट 45 ईस्ट 45th स्ट्रीट मैनहाटन. ओन्ड बाय PIA इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड. साइज 1025 रूम्स बिल्ट 1924. स्टेटस NYC को असाइलम सीकर हाउसिंग के लिए लीज 2023 डील. 3 ईयर लीज 232 सीमेंट टोटल 73 मालर्स ईयर. होटल से इमरजेंसी हाउसिंग में तब्दीली. सोर्सेज NYC मेयर्स ऑफिस अनाउंसमेंट्स 2023 PIAL स्टेटमेंट्स. रियल एस्टेट रिकॉर्ड्स. रिनोवेशन कॉस्ट एनालिसिस 2024 कॉस्ट. बेस 400 600 के X 1040 चारदान 615 मेरोस हिस्टोरिक प्रीमियम प्लस 25% 103 150 रस. NYC कंस्ट्रक्शन प्रीमियम प्लस 25% 103 150 रस. सिस्टम्स रिप्लेसमेंट प्लस 20% 82 123 मेरो. कंजर्वेटिव 650 900 मैनर. अपर बाउंड लग्जरी 950 105 B 1B. दवे का फैसला ये अपर बाउंड है, मिड नहीं. ज़्यादा दरसत जमला. रूजवेल्ट को शेक्स फर लीव 950 मेरी दरकार हैं और मुकम्मल लग्जरी रिपोजिशनिंग में 1B के करीब भी जा सकता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर 2000 में रिनोवेट हो जाता तब लागत 200 मीटर. NOI 40-50 एम ईयर. 24 साल रिटर्न 900 किस्म 1.2B. अप्रिशिएशन 230. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 203B. मगर नतीजा जवाल मुसाबकत ख़त्म. अब इमरजेंसी हाउसिंग. हिस्सा चहारम फ्रांसिक लागत खरीदार की हकीकी कैपिटल एक्सपोजर. टोटल बायर एक्सपोजर Rs 363 413B and Tier 1 verified. 1 mandatory reinvestment Rs 125 BN. 2 additional growth capital Rs 80 BN. 3 known liabilities Rs 33 BN Tier 1. Subtotal Rs 238 BN Tier 2. Estimates modeled. 4 footnote liabilities Rs 35 40 BN. 5 workforce restructuring Rs 20 25 BN. 6 fleet modernization Rs 40 60 BN. 7 वर्किंग कैपिटल बर्न Rs 30 25 BN टीयर 2. सब टोटल Rs को 125 155 BN. नतीजा Rs को 35 BN की कीमत पर ख़रीदार 5 साल में 2.3x कैपिटल कमिट कर रहा है. ये सस्ता ख़रीदना नहीं, ये फ्रंट लोडेड एग्जीक्यूशन रिस्क है. गलती की गुंजाइश तकरीबन 0. हिस्सा पंजम तहजीबी अदारा जाती तशखीस पैटर्न हर जगह एक.
PIA, Potential Hub, EU-US Ban, Patronage, Scribe, Landmark, Neglect, Extraction, Roosevelt, Premier, Emergency Housing, Extraction Building. हर मुकर्रर मैनेजर का सवाल, कितना निकाल लूँ, न कि कितना बना लूँ। हिस्सा शशम, नाक़िदीन के एतराज़ात और जवाब एतराज़। एक, नजकारी का रिकॉर्ड मिला जला है, दरस्त मगर गैर मुताल्लिक़। रियासती मॉडल, यकीनी नाकामी, 40 साला सबूत। नजकारी शो गैर यकीनी मगर गैर सफ़र इम्कान, और अगर नाकाम हुई तो बैंक्रप्सी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एतराज़। दो, वर्कर्स का क्या, नौकरियां हकीकी मसीला हैं, इसीलिए सिविरेंस आर इस पेंसिंग 25BN मॉडल है, मगर मौजूदा मॉडल का इंजाम आखिरकार कोलैप्स, सबकी नौकरी ख़त्म बग़ैर तहफ़्फ़ुज़। री-स्ट्रक्चर्ड मॉडल, कम मगर हकीकी नौकरियां प्लस सिविरेंस। एतराज़। तीन, ब्लू वर्ल्ड सिटी एयरलाइन नहीं चला सकता, ये मजबूत तरीन एतराज़ है और ईमानदारी से माना गया है, मगर रियासती सलाहियत 40 साल से सफ़र, प्राइवेट कैपेबिलिटी अननोन मगर नॉन ज़ीरो, और अगर नाकाम बैंक्रप्सी, मार्केट अल्टरनेटिव्स, हर सूरत रियासती मुसलसल नाकामी से बेहतर। एतराज़। चार, ये नज़रियाती न्यूलाइबरल प्रोपेगेंडा है, ये आइडियोलॉजी नहीं, ये मेजरमेंट है। R600BN लॉसेस, बैंस, 262 डूबियस लाइसेंसेस, 324 स्टाफ एयरक्राफ्ट, इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रास्ट। कुछ ममालिक स्टेट एयरलाइंस चलाते हैं, मगर उनके पास पॉलिटिक्स से इंसुलेटेड प्रोफेशनल मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी होती है। पाकिस्तान के स्टेट रन मॉडल में ये मौजूद नहीं। हिस्सा हफ्तम, अकबाल लतीफ़ का फ़ैसला। 1, PIA कौमी उसासा नहीं, लाइबिलिटी स्ट्रक्चर है। 2, 90.5% री इन्वेस्टमेंट अवामी मफाद की हिफाजत करता है। 3, पाकिस्तानी एक्सेलेंस मुमकिन है, कैम्ब्रियन पेट्रोल, PAF मिसालें। 4, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन अखलाकी ज़रूरत है, R600BN बीनन नस्ली चोरी है। दो रास्ते, पाथ ए, प्राइवेटाइजेशन, चांस नॉन ज़ीरो, फेल हो तो बैंक्रप्सी, फ्रेश स्टार्ट। पाथ बी, स्टेटस क्वो, फेलियर सर्टन, R600BN मज़ीद, रिवायरट सैनबर 200BN बनेगा, इखलाकी वजाहत। ये पेट्रियटिज़म नहीं, ये पेट्रोनेज का दिफा है, ये नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ये कोलैप्स को मौखर करके अवाम को लौटना है। इख्तिताम, ट्यूमर निकालना होगा, ये रिटोरिक नहीं, तशख़ीस है। PIA में सरतान की अलामात। 1, वसाइल खाता है, वैल्यू नहीं देता। 2, बेकाबू बढ़ता है। 3, दूसरे उदारों में भी जहर फैलाता है। 4, मेज़बान रियासत मईशत की बका को ख़तरा, ट्यूमर निकालना होगा। क्या मरीज़ बचेगा? गैर यकीनी। क्या ट्यूमर छोड़ने से मरीज़ मरेगा? यकीनी। यही इंतखाब है। Epistemic confidence, 9 point talks were done. EU-US ban, 2 sondidics to dubious licenses, RSARTs in 600BN losses, staffing ratio, Cambrian patrol, plus institutional contrast, deal structure, modeled estimates, वादह लीबल के साथ, हतमी बयान, शहरियों के नाम, आपसे 40 बरस में 600 अरब लौटे गए। ये रकम आपके बच्चों की तालीम, अस्पतालों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौाक़े पर लगनी थी, मगर ये पैट्रनेज, एम्प्लॉयमेंट, सियासी मैनेजमेंट और एक ऐसी एयरलाइन पर जली जो दुनिया में उड़ने के काबिल न रही। नजकारी कौमी उसासा बीचना नहीं, ये एक ऐसे ट्यूमर को निकालना है जो 4 दहाइयों से कौमी दौलत खा रहा है। जज्बातियत का वक्त उस दिन ख़त्म हो गया था जब PIA मगरबी फ़ज़ाई हदूद से खारिज हुई और 262 मशकूक लाइसेंस सामने आए। अब वक्त एहतिसाब का है। इकबाल लतीफ़, एवरी क्लेम वेरीफाइड, every number sourced, every conclusion earned, privatize or liquidate. Status quo, intergenerational theft. ChatGPT review, उर्दू तर्जुमा। ये इकबाल लतीफ़ की सख्त गैर प्राइवेटाइजेशन 101 है, तकरीर नहीं, एक फ्रांजिक आटोप्सी की फ्लिग कीरियर कैसे टैक्स दहंदगान की रकम जलाने वाली मशीन बन गई। ये खुसारे में चलने वाले रियासती उदारों के जज्बाती दिफा को तोड़ती है और नारे की जगह काबिल पैमाइश उदारा जाती हक़ाइक़ रखती है। पाबंदियाँ, लाइसेंसिंग स्कैंडल, दायमी खसारे और पेट्रोनेज की स्टाफिंग। ये डेल की बुनियादी मंतिक वाज़ह करती है। अवामी मफाद हुकूमत की केश वसूली नहीं, अवामी मफाद ये है कि लाजमी रीइन्वेस्टमेंट और हकीकी एग्जीक्यूशन कंट्रोल के ज़रिए एक फंक्शनल एयरलाइन बनने के अमकानात बढ़ें। ये फ़ैसला कुन उदारा जाती तजाद इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान आर्मी PIAF की बढ़तरी बेमुकाबला सूल SOEs की तबाही और साबित करती है कि मसला पाकिस्तानी जीन पूल नहीं, इंसेंटिव्स और गवर्नेंस हैं, और ये वाज़ह करती है
کہ روسویلٹ اور اسکرائب کو اسی ریاستی اثاثہ زوال کے ثبوت کے طور پر لیا گیا ہے، پی آئی اے کی سیل میں شامل اثاثے بنا کر نہیں، تاکہ ناقدین ریکارڈ کو زہرآلود نہ کر سکیں۔